ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ خلیل صاحب نے اپنا ٹائم دے دیا ہے، اس کے بعد اسکندر علی قمر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ گنواؤ ناوک نیم کشے دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تن داغ داغ لٹا دیا، میرے چارہ گر کو نوید ہو صفِ دشمنوں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پہ وہ حساب آج چکا دیا، ادھر ایک رفتہ گفتنی ادھر لاکھ ادھر تا کشتنی، جو سنا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جب چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے تجھے قدم قدم یادگار بنا دیا۔ طلباء کے انقلابی شعور کی ترجمان جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، عوام کے انقلابی شعور کی ترجمان جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، اور پنڈال میں بیٹھے میرے پارا پارا دیش سے تعلق رکھنے والے غلام مگر پرعزم انقلابی دوستوں، بہت وقت بیت چکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پیش رو جو مقررین نے باتیں کی ان سب کو انڈورس کرتے ہوئے، سب سے پہلے جو ہمارا جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ہمارے دوستوں نے جو چکوٹھی کے مقام پہ اس منوس خونی ذکیر کو عبور کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظریہ دیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے اس عظیم قائد مقبول بٹ شہید جس نے ہمیں یہ سوچ یہ فکر یہ نظریہ دیا تھا، اس کی سوچ ان کی یاد اور ان کی فکر میں ہمیں ایک منٹ کی خاموشی کے لیے احتراماً ان کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی اپنی سیٹوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ عہد کرنا پڑے گا کھڑا ہو کے کہ ہم اس چوک میں سارے دوست اپنی اپنی سیٹوں پہ اپنے ان عظیم انقلابیوں کو کھڑا ہو کر خراج عقیدت پیش کریں کہ جنہوں نے ہمارے مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ بہت شکریہ دوستو۔ مجھ سے پیش رو مقرر میرے دوست واجد علی واجد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہماری اس ریاست میں ہمیں دیا کیا گیا ہے، اگر اس کو اس اعتبار سے میں دیکھوں تو پاکستان میں ایک حلال کمیٹی بنی ہوئی ہے جو آپ کو جب چاند عید کا چاند نظر آنے کے لیے وہ حلال کمیٹی فیصلہ کرتی ہے۔ میرے مادر وطن کے لیے کشمیر کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جموں میں بھی ایئرپورٹ بنا دیا گیا، وادی میں بھی ایئرپورٹ بنا دیا گیا، لداخ میں بھی ایئرپورٹ بنا دیا گیا، مگر ہمیں پاکستان نے مظفر آباد میں اپر اڈا دیا ہے، راولہ کوٹ میں بلدیہ اڈا دیا ہے، اور باغ کے مقام پہ لاری اڈا دیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اس ناہمناد ریاست سے رشتہ کہ جس نے ہمیں 70 سالوں میں دوستو ہمارے بہت سارے لوگ، کیا ہمیں یہاں کوئی میڈیکل کوئی بڑا کمپلیکس نہیں دیا جا سکتا تھا؟ کیا یہاں ہمیں کوئی بڑی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں دی جا سکتی تھی؟ کیا ہمیں یہاں کوئی فیکٹری نہیں لگا کے دی جا سکتی تھی؟ نہیں بابا، یہ اس لیے نہیں لگا کے دی جا سکتی کہ انہوں نے آپ کو محروم رکھنا ہے، آپ کو محکوم رکھنا ہے، آپ کو اسی طرح ذلیل اور خوار رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے قائد کو جب 1984 میں پھانسی دی گئی، اس وقت اس ریاست بھارت کی جو وزیر اعظم تھی وہ اندرا گاندھی تھی، اور ریاست پاکستان کا جو ڈکٹیٹر تھا وہ جنرل ایاز تھا، اور ہماری ریاست کا جو صدر تھا وہ جنرل ایاز تھا۔ دوستو جنرل ایاز کی حالت بھی دیکھ لو، جنرل ضیاء کی حالت بھی آپ نے دیکھی، گاندھی کی حالت بھی آپ نے دیکھی۔ پھر میری ریاست کو نام نہاد مشرف جب میری ریاست پہ باہر لگا رہا تھا، میرے لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا،
आजम बनने वाले नवाज शरीफ को पाकिस्तान की रियासत ये बात कहती है कि तुम मोदी के यार हो, तुम गद्दार हो। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मेरी रियासत के मुज़ाकरात करते हुए राजीव गांधी जब पाकिस्तान में आया था, मेरी रियासत का बोझ मोहतरमा ने उठाया था। मोहतरमा की बेटे की आज हालत देखो, भीख मांग रहे हो। पीडीएम का ड्रामा मुजफ्फराबाद में कर रहे हो, न्याजी का ड्रामा तुम कोटली में कर रहे हो। ये सदा की धरती है, ये औलिया अल्लाह की धरती है। दोस्तों, इसे तकसीम होना होता तो 563 रियासत थी। जब बर्रे सगीर एक था, 563 रियासत के गुजरा थे, बड़े बड़े नवाबजादे थे। आज उनके नवाबजादे जर्नैलों के तलवे चाट रहे हैं और ये सुर्खपोश सिपाही जो अपनी माँ की चादर की खातिर लड़ रहे हैं। और कैसा उसने इत्तेफाक होता है, पार्टियों में इस्लामाबाद शामिल होते हैं और हल्का इंतखाब आप में आकर 70 साल से आपको कहते हैं हम आपको टूटी भी देंगे, नलका भी देंगे, हम आपको नौकरियां भी देंगे। और जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, कितना लालीपाप दिया जाता है दोस्तों। उनसे पूछा जाता है तुम्हारी एजुकेशन क्या है, जब वो नौजवान कहता है कि मैंने तो एमए पढ़ा हुआ हूँ, मैंने तो पीएचडी की हुई है, तो उसको साथ लगा लेते हैं। जब ये वजीर बन जाते हैं, जब वो नौजवान फोन करता है तो कहता है हमारे पास तो चपरासी लगाने की अथॉरिटी नहीं है। ये उनके असल चेहरे, नंगा करो इनको चौकों में, चराओं में, गलियों में, खेतों में, खलिहानों में। जब जिस स्टेशन पे ये आकर आपसे कभी कोई मामा बनेगा, कभी कोई चाचा बनेगा, कभी कोई फूफा बनेगा। दोस्तों, सब लालीपाप है, कोई चाचा फूफा नहीं है। गरीब का तबका गरीब है। ये रेडी वाला हमारी पार्टी का है, ये जलेबी वाला मेरी पार्टी का है, ये जो वेल्डर है मेरी पार्टी का है, ये जो जूते बरामद करने वाला है ये मेरी पार्टी का है, और ये जो अजाम वाला है ये मेरा भाई है, मेरी पार्टी का है। हमारा तबका एक है, हमारी रहन सहन एक है। हम खोखे से सिगरेट लेते हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोरों पे जाते हैं, ये डीएचए और गुलबर्ग में रहते हैं, हम कच्ची गलियों में रहते हैं। दोस्तों, इस्तेदाद को लेके चलना होगा, इस्तेदाद को लेके चलना होगा। ये जंग हमारी जात की जंग नहीं है, ये जंग हमारी तशख्खुस की जंग नहीं है। हमने बरादरीज़म के बुतों को गिराया, हमारी बरादरियां भी सियासत करती हैं, हमारी बरादरियां भी झंडी टंडी मांगती हैं, मगर हम उस झंडे के साथ खड़े हुए जिस झंडे को ये इस मुल्क की हवाएं सलाम पेश करती है, इस मुल्क की वादियां सलाम पेश करती हैं, इस मुल्क की बेटियां सलाम पेश करती हैं। और एक झंडी 6 इंच की ये भी लेकर आते हैं जो मांगी हुई पराडो, हमारे टैक्सी पे चलने वाली पराडो। दोस्तों, हमने अमन की बात की, हमने शऊर की बात की। अगर हम उन बुनियादों पे आए, हम पराडो भी पकड़ेंगे, तुम्हारे बेटे भी पकड़ेंगे, जूते मारेंगे, चौकू में मारेंगे। पराडो तुम्हारे बाप की नहीं है, ये गरीब के टैक्स की पराडो है, ये गरीब के उस मुस्लिम बेटी के टैक्स के पैसे की पराडो पे बैठे हुए हो। हमें कोई बड़े सोने सपने ना दिखाए, ना हम किसी की आए पाए, ना हम कोई किसी पर्सनल मसले में खड़े हैं। हमारे 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है। हमारी 20,000 25,000 औरतों की अस्मत दरी कर दी गई है। हमारे बच्चों को बुलेट गनों से उनकी नजरें खत्म कर दी गई है। ये जंग आज इस मासूम की है, ये जंग आज इस मजलूम बेटी की है, ये जंग आज सारे उस तबके की है कि जो तबका आज रोटी के लिए तरस रहा है। एक आदमी पेट से भरा हुआ था, एक आदमी पेट से भूखा था, तो उसने चांद देखा, तो जिसका पेट भरा हुआ था वो कहता है चांद बड़ा खूबसूरत है, भूखा कहता है मुझे तो रोटी जैसा लग रहा है। दोस्तों, हमने उनकी जंग लड़नी है, हमारी जंग इस मस्कीन की है, हमारी जंग उस टेंटर की भी है, हमारी जंग उस पेंटर की भी है, हमारी जंग उस खाकरूब की भी है जो इस शहर की सफाई करता है। हमारे लिए सबसे बड़ा वो है जो हमारा गंद उठा रहा है। मैं समझता हूँ ये जंग इंसानियत की है, ये जंग आलमी अमन की है, ये जंग इस रियासत की बका की है, ये जंग इस रियासत के तशख्खुस की है। वरना याद रखो
वरना याद रखो कल आपको पिंडी से लगा दिया जाएगा। कोटा में जिस तरह तुम्हारी गाड़ियां रोकी जाती है, अगर कश्मीर के किसी ड्राइवर से कोटा वाले की मुर्गी मर जाए वो उसकी गाड़ी पकड़ लेता है, मुजफ्फराबाद वाले अहमदाबाद के साथ लगाए जाएंगे। और ये जो बिम्बर का सेक्टर है, मीरपुर का सेक्टर है, इसको गुजरात के साथ लगाया जाएगा। ये जो डोमिसाइल तुम जहां स्टील से बनवाते हो ये कोटा में बनवाओगे, तुम्हारी तजलील होगी। जहां गुजराती एसएचओ आएगा तुम्हारी तजलील करेगा। ये जंग आपके बका की जंग है। दोस्तों, मोदी ने जब ये इकदाम किया, मोदी ने जब ये इकदाम किया तो क्या उस वक्त ये जो मोदी का इकदाम था, यहाँ का नाम नहाद लीडर, यहाँ का रवायती लीडर, क्या वो बाहर नहीं निकल सकता था कि हम मोदी के इस इकदाम के खिलाफ हैं? हम समझते हैं, हमने पहले भी कहा था कि हमारी जंग दिल्ली और इस्लामाबाद से है। मोदी ने किसको तमाचा मारा था? जो वहां मोदी का पैरोकार था, शेख अब्दुल्ला की नस्ल को मुंह पे तमाचा मारा और महबूबा मुफ्ती को तमाचा मारा। मैं समझता हूँ यहाँ भट्ट कबाइल के कितने लोग, हम जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो भट्ट कबाइल से नहीं है, मगर मकबूल भट्ट का वो किरदार है कि आज कोई शख्स मुझे बता दे कि मुजाहिद अमर किस दिन मरा था, कोई शख्स मुझे बता दे गाजी मिल्लत कब मरा था, कोई शख्स मुझे बता दे जनरल अयाद कब मरा था। मरता है इंसान, तारीख बात देती है दोस्तों। अगर ये वो शख्स है, क्या यहाँ मैं हजीरा की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर चाहे एक कश्मीरी है वो वहाँ एक खड़ा होकर ये नारा मार रहा है कि तुम कल भी जिंदा थे, तुम आज भी जिंदा हो। और जो यहाँ अपने फांसी के फंदे को चूम कर ये शेर पड़ता हुआ फंदा चूमता है कि मैं झूठ के सूरज से नहीं लाया हूँ गिरने, मैं तो नूरे सदाकत के लिए खुद ही जला हूँ। बहुत सारे लोगों की इस तरह की भी शिकायत होती है कि ये जी बहुत सारे ग्रुप इसमें है। मैं समझता हूँ ये जो रवायती पार्टियां हैं, सारी पार्टियां ये बात कह रही हैं हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। मैं कहता हूँ ये सारी पार्टियां क्यों गठित नहीं है, हम सारे एक है। हमसे पहले जो यहाँ हमारे दोस्त जो प्रोग्राम कर रहे थे, हम एक जिस्म की मानद है, हमारे एक दूसरे से इंस्टीट्यूशनल इख्तिलाफात हो सकते हैं, नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो चोरों दलालों तलवे चाटने वालों, हम सारे तुम्हारे खिलाफ हैं। ये तुम्हारी भूल है कि तुम गाड़ी के अंदर से टेम्परेचर चेक करते हो, उंगली बाहर निकाल के देखते हो। अगर बाहर गर्मी है तो तुम गाड़ी का एसी ऑन करते हो, अगर बाहर सर्दी है तो तुम गाड़ी का हीटर ऑन करते हो। ये लोग तुम्हें, जिस तरह वाजिद साहब ने कहा, ये बच्चे तुम्हें गिरबान से पकड़ेंगे। आज हमारी बॉर्डर लाइन जो हमारा सीज फायर लाइन था, वहां की पोजीशन ये है कि एक गरीब आदमी, एक मुस्किन आदमी, एक दूसरे 4 साल 5 साल लगा के अपनी जो एक देश एक सांडा तैयार किया, वो पाकिस्तान आर्मी ने खा दिया। ये कितने शर्म की बात है दोस्तों। कोरोना आया, पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस हुई, लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पे अपने बच्चों को तालीम दिलवाई। हमें किस पादाश में तुमने मोबाइल सर्विस से महरूम रखा हुआ है? हम ये सारी तुम्हारी चलाकियां समझते हैं, मगर याद रखो ये पाकिस्तान की आर्मी, ये हिंदुस्तान की आर्मी एक दिन ये जरूर बढ़ते हुए जाएगी कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचा से हम निकले। हम अमन चाहते हैं, मगर उस वक्त तक जब अगर जंग जरूरी हुई तो फिर हम जंग चाहते। तो दोस्तों, आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी इंशाअल्लाह, हमारे कैंडिडेट कोई इतने बड़ी पराडो गाड़ियों में नहीं होते, न उनके साथ कोई बड़े लश्कर होते, न वो डीएचए गुलबर्ग या बैरियल से आते। आप ही में से लोग होंगे। आपने ऐसे लोगों का इंतखाब करना है जो आपके साथ रक्शे में बैठ सकता है, जो आपके साथ रेडी से फ्रूट ले सकता है, जो आपके साथ धोखे से सिगरेट ले सकता है। आप जब तक उन लोगों का इंतखाब नहीं करोगे, ये गुलबर्ग वाले, ये बर्गर फैमिलियों वाले, आपको इसी तरह वो किसी इलाके का नंबरदार फोत हुआ ना, तो एक गरीब कबीले का बंदा अपनी वालदा से कहता है कि आप इस इलाके का नंबरदार कौन बनेगा, तो उसने कहा उसका बेटा बनेगा।
उसने कहा वो मर जाए, उसने कहा उसका बेटा बनेगा। आखिर में उसने कहा हमारे कान ना खा, तू क्या कोई नंबरदार नहीं बनाना। दोस्तों ये बात समझने की है, ये बात समझने की है कि हमें कैसे आज से गुजर रहे कि बाप, फिर उसका दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, फिर उसका पता नहीं नक्कर पोता, पता नहीं कौन कौन आप पर मुसल्लत किए जाएंगे। हमारी उनसे भी कोई जंग नहीं है, ये जंग है हमारी बहादुर वतन के तशख्खुस की। तुम चादर बहादुर वतन की बेचने वाले हो, हम चादर के महफूज हैं, तुम चादर बेचोगे हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे, तुम मुल्क बेचोगे हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे, तुम गद्दारी करोगे हम गद्दारी करने नहीं देंगे, तुम धोखाबाजी करोगे हम धोखाबाजी करने नहीं देंगे। ये ऐद करो, आज ये ऐद करो कि जिस मकबूल भट्ट ने कुर्बानी दी थी उसने किस खातिर कुर्बानी दी थी। वो कुर्बानी आपकी इज्जत की कुर्बानी थी, आपके तशख्खुस की कुर्बानी थी, आपके आबरू की कुर्बानी थी। और इस नामनाद रियासत में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ने अपनी 55 साल तारीख है दोस्तों हमारी। मैं समझता हूं आज उन दोस्तों के नाम न लिए जाए जिन्होंने 1970 से लेकर 1980 के अशरे में कि जब इस नामनाद रियासत पाकिस्तान के साथ से बांग्लादेश अलग हुआ तो हमारे ऊपर एक 74 मुसल्लत किया गया। मैं समझता हूँ शायद में हमारे दोस्तों के साथ जो तशद्दुद हुआ, हम उन दोस्तों की जगह को सराब पेश करें। और ये तसलसल चलता रहा और 1980 की दहाई से 1990 की दहाई तक जिन दोस्तों ने कुर्बानियां दी हम उनकी जदोजहद को सलाम पेश करते हैं। ये झंडा चलता चलता हमारे हाथों में पहुंचा, हमारे हाथों से हमारे आने वाले बच्चों के हाथों में देंगे। ये गैरत का झंडा है, ये खुदी का झंडा है, ये बेगैरत का झंडा नहीं है। और ना बेगैरत इस झंडे को हटा सकता है। इनकलाबी वही होता है जो गैरतमंद होता है, जो मरना जानता है, जो कटना चाहता है। और आज ये भी ऐलान करते हैं इस शहर में कि जो सरेदार होगा वही शहर का सरदार होगा, कोई सरदारी नहीं होगी। जो लटकेगा वो सरदार बनेगा, जो लूटेगा वो चोर होगा, गद्दार होगा, मक्कार होगा। हम कल भी कहते थे, हम आज भी कहते हैं, हम कल भी कहेंगे। तुमने जो करना है एजेंसी वालों लिख लो, जो लिखना है। 37 साल हो गए हैं इस चौक में ऐद करके जाते हैं, फिर ऐद करके जाएंगे, फिर ऐद करेंगे। हम बच्चे अपने कुर्बान करेंगे, गर्दनें अपनी कटवाएंगे। तुम्हें खलवाड़ नहीं करने देंगे, तुम्हें मम्मी डैडी नाच नहीं करने देंगे, हमें हमारी औरतों की इज्जत को पामाल नहीं होने देंगे। दोस्तों ये याद है आज का दिन। और दोस्तों हमारे साथ जो अलमिया बना हुआ है, हमारे साथ जो अलमिया बना हुआ है 2011 में पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारी पार्टी एक है। ये कोई यूथिया, कोई मुस्लिमिया, कोई नूनिया नहीं है। एक पार्टी से इधर उधर आते हैं, डांस करते हैं एक दूसरे के आगे। इनकी शराब इकट्ठी है, इनकी कबाब इकट्ठी है, इनको मुल्क बेचने का एजेंडा इकट्ठा है। 2011 में इन्होंने हमारी रियासत के साथ ड्रामा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पे हम वफाक की पार्टी में तुम्हारे वफाक को जूते की नोट पे लिखते हैं। और सुन ले न्याजी, जनरल न्याजी से भी पूछ लो, तुम्हारी 90,000 नौजवानों की जो फौज जिसकी पेंटे आज भी बांग्लादेश में है, ये फौज के खिलाफ बोलते हैं। फौज हमारी नेता खा गई, हमारा गेड़ा खा गई, हमारी पैसे खा गई, हमारी मादनियात खा गई, हमारे जंगलात खा गई, हमारा टूरिज्म खा गई। हम फौज के खिलाफ बोलते हैं। भाई फौज हमारा सब कुछ लूट के ले गई, हम बोलते हैं हम गैरतमंद हैं। तुम भी बोल कर देखो। दोस्तों इस मुल्क के अंदर कैसा दस्तूर है? आप लोहे की खिड़की तो ले सकते, आप लोहे का दरवाजा तो ले सकते, मगर आप अपने ही मुल्क से अपना पाला हुआ दरख्त नहीं काट सकते। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है
कि आप पाकिस्तान की मंडी हो, आपने स्टील मिल को मजबूत करना है और जो जितना पाकिस्तान पंजाब की मंडी से जितना थर्ड क्लास आटा है, थर्ड क्लास फ्रूट है, वो हमें भेजा जाता है, जितनी एक्सपायर्ड चीजें हैं वो हमें भेजी जाती है। तुमने हमारे लोगों को, गिलगित के लोगों को, आजाद कश्मीर के लोगों को अपनी मंडी बनाया हुआ है। किसी को आपसे कोई प्यार नहीं है दोस्तों। ये जो आपको इमारतें नजर आ रही हैं, ये हमारे उन अफाजदाद की कुर्बानियां हैं जिन्होंने यूरोप में जाके, जिन्होंने अरब में जाके, जिन्होंने कनाडा और अमेरिका में जाके अपनी एक नस्ल कुर्बान की है। एक नस्ल कुर्बान करने के बाद उन्होंने ये सारा कुछ तमीर किया है। जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ फैक्ट्री नहीं है, जहाँ मिल नहीं है, जहाँ के नौजवान को इसलिए मजबूर किया जाता है कि तुम या नारा वफाक की पार्टी को मारो। ये अगर इतने बड़े आपके वफादार हैं, इनसे कहो अपने हल्कों में जिन हल्का इंतखाब से तुम इलेक्शन लड़ते हो, उस हल्के में पार्टी में क्यों नहीं शामिल होते हो? इस्लामाबाद में जाकर तलवे क्यों चाटते हो? बहुत लंबी बात हो गई है, बहुत लंबी बात हो गई है। मैं सारे उन लोगों का जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, हमें कंट्रीब्यूशन किया, मैं साफत का, अंजुमन ताजरा नजीरा, जिनका कारोबार आज हमारी वजह से, मैं समझता हूँ कि सारी चीजें तो बंद होनी चाहिए थी। कोरोना में हम 4 महीने हमारा कारोबार बंद हुआ, कोई मरता नहीं है। आज उस अजीम सुरखेल की जदोजहद, आज उस अजीम सुरखेल की कुर्बानी थी कि जिसको हम खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। और इनमें और हम में डिफरेंस ये है कि ये मुर्दों के आगे नाचते हैं, हम शोधा का झंडा उठाते हैं। हमारे कायद ने फंदा चूमा है, इनके कायद ने मुल्क बेचा है। हमारे कायद ने फांसी को चूमा है, इनके कायद ने मर्दार खाने को तरजीह दी है। तो दोस्तों, फैज की इस खूबसूरत गजल के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि रब्बा सच्चा, तू ते आख्या सी चाहो बंदिया जग दा शाह है तू, साडियां नियामतां तेरियां दौलतां नी, साडा नायब ते आली चाहे तू। इस लारे ते टोर कद पुछिया कि इस नमाने ते बीतियां नी, किते दोनसपुर सरकार दिए, किते लूट खसूट माल पटवार दिए। एमे अड्डा विच कल्पे जा मेरी जिवें फाई च कूंज कर लांदी है। ओ चंगा शाब रहे यो रब सैयां, बोले खांदिया वार नहीं आंदी है। मैनू शाही नहीं चाहिए रब मेरे, मैं तो इज्जत का टुकड़ मंगना, मैनू तांग नहीं महला माड़ियां दी, मैं तो जीवन दी नुक्कड़ मंगना कि मेरी मन्ने ते तेरियां मैं मन्ना, तेरी जे सोनिया मैं एक भी गल मोड़ा कि ये मांग नहीं बुझदी ताई रब्बा फिर मैं जावां ते रब कोई होर लोड़ा। इन जदोजहद फतह।